پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو. لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو اکثر پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہا اسلام پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی صرف. یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو، ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے. اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کہ کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہے، پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے. چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہے ہمارے. اب یہ 2 جمع 2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ. ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ کرو، اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ان دونوں کو دباؤ. یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی. اب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی. انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. پسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیلی کی ہے مصر میں، اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شے کا نام ہے. علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی. وہ نجف کہا نا انہوں نے، حضرت علی کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے. ہاں دوسری سورس جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، جہاں ابراہیم دفن ہے، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن ہیں، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت عیسیٰ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اور مجھے امید ہے میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں. چند را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خوبش تو از رگھائے ساز آید برون. لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو. میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے. اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا. میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں. یکے چند راگیرے دست دستم. اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر عرض کروں گا کہ جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا فرق ہے، اس کے لیے یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ لیکچرز میں وہ مہدی کا تصور اور مسیح اور اس کا تصور، اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیجین اثرات ہیں اسلام میں. اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل. بعض چیزیں عقل میں نہیں آتی، فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جائے. لیکن ان کی شاعری الہامی تھی. اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے، متقدم شاہ، کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہوتا تھا، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے کام کرتا تھا. تو مہدی کا تصور کی اس طرح کی نفی. لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے. اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے. شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی بعد میں امام تھے جو خربوپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے. اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز. یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہے.
मशरिकी मुल्क से फौजें आएंगी जो मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगी। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान हो। इकबाल के ख्वाब में वो पाकिस्तान ही था और अफगानिस्तान भी साथ। बहरहाल आज जो किरात हुई उसमें भी जो नक्शा खींचा गया है कि यहूद और नसारा को अपना वली न बनाओ। हमारी बदकिस्मती है कि इस दौर के बहुत बड़े मुफक्किर, मुअर्रिख, दरवेश सिफत इंसान डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम ने इस आयत में वली का तर्जुमा किया है हाकिम न बनाओ। हैरान, अरबी के बहुत बड़े माहिर, लेकिन मेरे नजदीक ये आयत कुरानी जिसकी उम्र ज्यादा कर देते उसकी अकल उंदी कर देते, तकरीर की सलाहियतें कम कर देते, वो औलिया का तर्जुमा हाकिम कह रहा। अच्छा, हाकिम कोई किसी को खुद बनाता? अंग्रेज आए थे तो हमने बनाया था? वो तो आए थे अपने जोर जोर से आए थे। ये वली का तर्जुमा है, जमा है औलिया ने। साथी ना बनाओ, हमदर्द ना बनाओ, सहारा ना बनाओ, पुष्पना ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ, राजदान ना बनाओ, ये इसका तर्जुमा। तो वाकईतन इस वक्त हम यहूद और नसारा के अंदर जो आयत में अल्फाज आए थे, युसारिऊना फिल खैर फीहिम, कुछ लोग हैं घुसना चाहते हैं उनके अंदर, उनकी तहजीब में, उनके तमद्दुन में, उनके निजाम में घुसना चाहते हैं। और कहते क्या हैं, जैसे कि कहा था 11 सितंबर 2001 को सदर मुशर्रफ ने, जो मैंने अपने कानों से सुना फिर 16 सितंबर 2001 को, अगर हम इस वक्त साथ देंगे अमेरिका हमारी एटमी सलाहियत की भी हिफाजत करेगा, कश्मीर का मसला हल करा देगा, नहीं तो ये सारे मामला अभी खत्म हो। बना दायरा कि हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए, डर रहे। वो डर क्यों रहे? अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह की मदद का एहसास नहीं, आएगी नहीं अल्लाह की मदद। तुम अल्लाह से जंग कर रहे हो, मदद कैसे आएगी? लिहाजा उनमें घुस रहे। लेकिन उसके मुकाबले में जो एक जमात का नक्शा पेश किया गया है, मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, और वो उसकी राह में जिहाद करेंगे, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, और वो काफिरों पर सख्त होंगे, अहले ईमान पर नर्म, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। अल्लाह ताला हमें वो जमात बनने की तौफीक अता फरमाए। इन दोनों आयतों का ताल्लुक जो है अगली आयत से हुई है। मौलाना फारूकी साहब ने हजरत आयशा का शेर का जो एक मिसरा मुझे याद रह सका है, वो लैसा ये शम्स ना लम्हन गुरूब, सारे दुनिया में ये भी है, सूरज है वो गुरूब हो जाता है, हमारा सूरज कभी गुरूब नहीं होता, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल की ज़बान में सुना चुका हूं, हर को जाबीनी जहाने रंगोबू लाके असहाकश बरोय दारजू याद नूर मुस्तफा उरा बहास्त या हुनूद अंदर तलाश मुस्तफास्त। फिर जो आयत उन्होंने पढ़ी, वद्दू लौ तकफुरून, वो ये चाहते तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो खुद काफिर है। दुम कटी बिल्ली चाहती है सबकी दुमें कट जाए। इसको न समझकर और सिर्फ वक्ती से फायदा, कह दिया था 16 सितंबर 2001 को, रूबरू कहा था कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गद्दारी है अदल और इंसाफ के मुसल्लमा उसूलों से, कि अभी कोई जुर्म साबित नहीं, तालिबान का तो कोई है ही नहीं जुर्म, अगर आप कहते हैं ओसामा बिन लादेन का, वो भी साबित नहीं, और सजा देने पर तुल गए। कौन से उसूल है ये अदालत के? डॉक्टर साहब तो चीफ जस्टिस भी रहे। नंबर 2, ये गैरत और हमीयत से बगावत है। एक हुकूमत आपने कायम करवाई, मदद की, सपोर्ट किया, प्रोमोट किया, उसका सफीर आज तक भी बैठा हुआ है आपने उन्हें निकायदाइश किया, और एक धमकी पर पताशे की तरह बैठ गए, 180 का टर्न ले लिया। तो कोई गैरत और हमीयत भी किसी शय का नाम है? कि हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, वो तैमूर के घर से क्या सादात के घर से गई। मुशर्रफ साहब तो सैयद होने के मुद्दई है। और नंबर 3, ये बगावत होगी इस्लाम से कि एक मुसलमान हुकूमत के खिलाफ, मुसलमान मुल्क के खिलाफ गैर मुस्लिमों का साथ दिया। अलबत्ता जो आप बता रहे हैं हिकमतें, वो हकीकी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वक्ती है। जल्द या बदेर आपकी बारी आकर रहेगी। बाद में खुद कहा मुशर्रफ ने कि हमारी बारी भी आ सकती है, लेकिन आप जा रहे हैं उसी के दामन में। ला मलजा मिनका वला मावा इल्ला इलैक, ये तो दुआ है रात के वक्त सोने की मसनून दुआ। ऐ अल्लाह, तेरे किसी इकदाम के खिलाफ कहीं पनाह लेने की जगह है ही नहीं सिवाय तेरे दामन के। जैसे मां बच्चे को मारती है और बच्चा मां से चिमटा जाता, कहां जाए? ज्यादा ये अमेरिका से चिमटे जा रहे हैं। इंजीनियर सलीमुल्लाह खान साहब ने जो बात कही, रोशन ख्याली का निफाज, ये है असल बात जो इस वक्त इस हुकूमत के तहत हो रहा है।
पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके, अपने ख्यालात मुतलका को इस्तेमाल करके, कि उनके ख्याल में रोशन ख्याली है, जो रोशन ख्याली का अतातुर्क मॉडल है, बुर्के जबरदस्ती उतरवा दिए, अंग्रेजी लिबास पहनना लाजिम कर दिया गया, अजान भी दो तो तुर्की में दो, नमाज पढ़ो तो तुर्की में पढ़ो। ये सारा मामला ये शख्स भी करेगा अगर इसे मुहलत मिल गई, बल्कि उससे 10 कदम आगे जाएगा। हाफिज आकिब सईद साहब की गुफ्तगू में से मैंने सिर्फ एक चीज नोट की थी, उसका मैं पहले तस्करा कर चुका हूं कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। ये वाकया है जो पेश आ चुका, तहजीब मर चुकी, खिलाफ फितरत, उसूल तखलीक के खिलाफ दुनिया जा रही है, जिसे कुरान ने कहा तक़तऊन सबील, तुम राह मार रहे हो। ये राह मारना जो है रहज़नी भी है, और ये इंसानियत की पैदाइश की राह नहीं मारी जा रही। 2 औरतों की शादी, 2 मर्दों की शादी, फितरत के राह को मसलूट किया जा रहा है। मोहतरम और मुकर्रम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की जो के फरमूदात में से एक पर मैं पहले तबसरा कर चुका हूं। मेरे नजदीक ये एनलाइटनमेंट की ताबीर है, जो आज से 400 बरस पहले की बात है, और आज उसे हम उस एनलाइटनमेंट जिसमें इस्लाम की एनलाइटनमेंट के साथ यहूदियों का ज़हन, फिक्र चाला के यहूद शामिल हो गया था। मुझे एक शेर याद आया, कौन स्याही घोल रहा है वक्त के बहते दरिया में। वक्त का बहता दरिया इस्लाम की तालीमात, हुर्रियत व अखुवत व मुसावात, जिसका राग अलापा इकबाल ने, जिसका राग अलापा बल्कि कव्वाली कही जिसकी कायदे आलम ने, इसके अंदर जहर दाखिल किया है। हुर्रियत अल्लाह से भी आजादी, इबादत में आजादी, मुसावात औरत मर्द बिल्कुल बराबर, समाजी निजाम क्या है ये शर्म और हया और ये इस्मत व इफ़्फ़त, गैरत न तुझ में होगी न ज़न उठ चाहेगी, वो जमाना आ रहा है, आ चुका है। नंबर 2, डॉक्टर साहब ने सबसे ज्यादा अहम करार दिया इन्क़िलाब फ्रांस को। यकीनन वो भी रिनाइसेंस का एक प्रोडक्ट है, नतीजा है। आजादी, बादशाहों से आजादी, जागीरदारों से आजादी, लॉर्ड से, बैरन से आजादी, लेकिन इसका जो असल मसला है वो है दर हकीकत चर्च ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये है 2 चीजें जो यहूदियों ने वहां पर मुसल्लत की। चर्च पापाइयत से अगर बगावत ना होती तो सूद की इजाजत नहीं मिल सकती थी, सूद हराम था, यूरोप के निजाम के तहत हराम था। प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से इन्होंने उसकी इजाजत हासिल की और फिर अपने सूदी हथकंडों के अंदर पूरे यूरोप को जकड़ लिया, फरंग की रगे जहां बन जाए यहूद में। बैंक ऑफ इंग्लैंड। तीसरी बात जो जमालुद्दीन अफगानी के बारे में कही कि खलीफा पर शूरा की राय या अक्सरियत की राय मुअस्सर होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए। मैंने अपना जो तस्वुर पेश किया है जदीद खिलाफत का, उसमें यही बात कही है। दरखास्त करूंगा कि डॉक्टर साहब मेरी वो छोटी सी किताब पढ़ लें। इंस्टीट्यूशन बहुत बाद में डेवलप हुए। खुलफाए राशिदा में लेजिस्लेचर, इज्तिहाद, और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबके हेड खलीफा थे। जैसे हुजूर थे, तीनों चीजें जमा थी। लेकिन आज इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए। ये 3 पिलर्स को अलहदा करना होगा। आज हमें वो शख्स नहीं मिल सकता जो तकवा और तदय्युन में, खुदा दर्शी में और लिल्लाहियत में सहाबा किराम के साथ में खड़ा हो सके। लिहाजा वो एतमाद नहीं किया जा सकता। फेडरेशन की जो तजवीज उन्होंने पेश की थी, मेरे इल्म में हाल ही में आया जो उनकी तजवीज थी कि ये इलाका हिंदुस्तान का जो आज पाकिस्तान की शक्ल में है, और अफगानिस्तान और रूसी तुर्किस्तान मुसलमान रियासतें हैं, क्योंकि 1897 में जमालुद्दीन अफगानी का इंतकाल हो चुका था। बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया 20 बरस बाद 1917 में। उस वक्त तक ये तुर्क रियासतें मुसलमान रियासतें थी। इनको जोड़कर, इसलिए कि इन तीनों के अंदर फिक़े हनफी है जो गालिब है, एक ही फिक्र है। ईरान को उसने शामिल नहीं किया, हालांकि बाई बर्थ इबादत ईरानी, वहां जरा मुख्तलिफ है अकाइद भी और फिक़ा भी। इन तीनों को जोड़कर एक ब्लॉक बनाया जाए, ये ख्वाब था जो उसने देखा था। एक दूसरा ख्वाब इकबाल ने देखा था 1930 के खुतबे में। ये डेस्टिनी है कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान रियासत कायम हो, और अगर ऐसा हो गया तो हमें मौका मिल जाएगा कि इस्लाम के चेहरे पर अरब इंपीरियलिज्म के दौर में जो दब्बे और दाग आ गए थे उन्हें हटाए और सही इस्लाम का नमूना पेश करें। शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा है डॉक्टर साहब ने, उन पर कुफर का फतवा उनकी तालीमी पॉलिसी की वजह से नहीं लगा। हकाइक को दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए।
जैसे कि डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा, वो अपनी कौमी सोच के दायरे से निकलकर मजहबी और एतकादी दायरे में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा फरिश्ता कोई चीज नहीं है, सिर्फ फोर्सेस ऑफ द नेचर जो है वो फरिश्ते हैं बस, कोई उनका बॉडीली एग्जिस्टेंस नहीं है, शख्सी कोई उनका वजूद नहीं है। जिन भी आम इंसान होते हैं कोई नहीं आग से पैदा किए गए, बस सिर्फ जैसे हम कहते हैं कि वो गुस्से में आग बगोला हो गया, तो जो अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं वो गुस्से में आग बगोला हो जाते हैं, इसलिए वो लोग हैं जिन्होंने जिन कहा गया। वो आग तो नहीं होते ना, आग से बने इंसानी होते। मौजूदात का उन्होंने इनकार किया। वो जो कानून मादी था उसको इतना गालिब समझा कि कुदरत खुदाबंदी भी उसकी पाबंद हो चुकी है। ये कवानीन अल्लाह ने बनाए, क्या वो उन्हें तोड़ नहीं सकता कभी? नहीं, ये कवानीन वाला तो है। इस एतबार से उन पर कुफर के फतवे लगे। वो इल्म कलाम के मैदान में आ गए थे, वरना सिर्फ तालीम की बात करते तो इख्तिलाफ था उलमा का। उलमा ने असल में वो नॉन कोऑपरेशन शुरू कर दी थी बहुत पहले, जिसका ख्वाब गांधी को बहुत बाद में आया। हम तुम्हारा इल्म पढ़ेंगे, ना साइंस पढ़ेंगे, ना फलसफा पढ़ेंगे, ना तुम्हारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाएंगे, हम तो काल अल्लाह काल रसूल के जजीरे बनाकर बैठ जाएंगे कोनो खतरों में। इट वाज ए नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिशर्स। लिहाजा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें कही जा सकती हैं। और मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में अपना छोटा सा मजमून पेश करूंगा। इस्लाम की नशत सानिया करने का असल काम दरखास्त है, और आप लोगों के सामने अला रऊस इरशाद वादा देना चाहता हूं कि जरूर पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल के बाद में मौलाना मौदूद ने जो कहा वो मैं समझता हूं ज्यादती है। मौदूदी साहब ने जो बातें कही कि वो मलामत या फिरके से थे, ये सूफियों का एक मसलक है। बास सूफी जो लिल्लाहियत में इतने गुजर जाते थे गुलू कि लोग कहीं हमारे अकीदतमंद ना हो जाए। अकीदतमंद हो जाएंगे तो हमारे हाथ चूमेंगे, हमारे पांव चूमेंगे, शख्सियत परस्ती आ जाएगी, और यही बुत परस्ती की बुनियाद होती है। तो वो खिलाफ शरा का अमल ऐलान करते थे ताकि लोग हमसे मुतनफिर हो जाए, हमारे पास ना लेट अस अलोन, हमें रहने दे। इसमें कोई तौहीन का पहलू बिल्कुल नहीं था। अल्लामा इकबाल के खुतबा इलाहाबाद में जो कौमियत की बहस है उसको तो आम किया ही मौदूदी ने। मसला कौमियत नामी किताब लिखकर। अल्लामा का खुतबा तो आज भी लोग पढ़े तो समझ नहीं सकते, वो फलसफियाना बहस है, लेकिन उसको आम किया है। मसला कौमियत के नाम से किताब जो एक जमाने में मुस्लिम लीगियों के आंख का तारा थी, और हजारों लाखों उसके जो है तकसीम किए गए। अलबत्ता बाद में उनका इख्तिलाफ था कि क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में आ रही है, जिसे आपने भी कहा कि वो सेक्युलर माइंडेड थे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे, तो इससे इस्लामी रियासत कायम नहीं होगी, एक मुस्लिम नेशन स्टेट और वजूद में आ जाएगी, और ये बात सच्ची साबित हुई होगी। बहरहाल मैं समझता हूं ज्यादती है उनका जिक्र उन उलमा के साथ करना। हाँ, मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से मौलाना नजमुद्दीन इस्लाही या ताउला शाह साहब बुखारी, और रिकंस्ट्रक्शन के बारे में ये कि ये शुराई जो ये सूडानी आलिम ने कहा कि ये कुफरियात हैं, या सुलेमान नदवी साहब ने कहा कि ये किताब ना लिखी जाती तो बेहतर था। अबू हसन नदवी को आपने पोता करार दिया है सैयद अहमद बरेलवी का, वो कई पुश्तों में जाकर नवासे बनते हैं। सैयद अहमद बरेलवी का बेटा तो कोई था ही नहीं, और वो भी बराह रास्त नवासे नहीं, कई पुश्ते हैं। वो तो बहुत पुराने, बहुत जमाने का जो है उनके दरमियान वक्फा है। फिर मैं आपसे एक बात और अर्ज करूंगा, मुस्लिम लीग की असल क़यादत यकीनन सेक्युलर लोगों की थी, गैर आलिम लोग थे। अब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब उन्हें खामखा आलिम बनाना चाहे तो आलिम नहीं बन जाएंगे। इकबाल आलिम था, उसकी इब्तिदाई तरबियत अल्लामा मीर हसन के तहत हुई थी। उसके अंदर उसका अपने वालिद और वालिदा का खून दौड़ रहा था, जो सूफी मिजाज थे, कायदे आदम नहीं थे। वो एक आम किस्म के खोजे घराने में, कारोबारी घराने में पैदा हुए। उनकी तालीम में, तरबियत में कोई दीन का दखल नहीं। वो और थे, ये और थे। और मैं बदकिस्मती समझता हूं कि क़याम पाकिस्तान में असल बात की जाती है कायदे आदम की, असल बात इकबाल की करनी चाहिए, जिसका मुरीद बन गया था मोहम्मद अली जिन्ना। लंदन की तीसरी कोलबेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो मुलाकातें हुई हैं, उसे मैं आजकल कह रहा हूं ये मौलाना रूम और शम्स तबरेज की मुलाकातों के बराबर थी। वो वापस आए हैं तो उसके बाद उन्होंने कव्वाली गाई है इस्लाम की। ये सब वो इंजेक्शन था जो इकबाल ने दिया था, जो 37 के खुतबे में मुस्लिम लीग में दे चुके थे। बहरहाल रोशन ख्याली की इस में अब आज की रोशन ख्याली जो है, आपने चूंकि उनमें मौलाना शिबली का नाम भी लिया है, वो यकीनन मौजूदा हिसाब से भी रोशन ख्याल थे। उन्होंने आपके वालिद मरहूम को भी
ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا، گمراہ کیا، اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ اس پر ایک پورا مقالہ لکھا جا چکا ہے اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا ہوں۔ بہرحال آج کیا ہو رہا ہے، علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی امریکہ کے اندر۔ یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگو بار آج لا رہے ہیں نا۔